So, first of all, what do you mean by subsidiary book? According to chapter 1, accounting process, first of all, we have to find out one financial transaction. First of all, we have to pick financial transaction, then we have to measure it into money. Then, according to third step, we have to record that transaction in the very first book, that is journal book. So if the small size of business is there, means number of transactions are very less, then only one book is sufficient, that is only journal book. Clear? So in that journal book, we have to record each and every transaction in chronological order, means date wise. Clear? So that book contain each and every transaction, whether it is a cash transaction or credit transaction, whether it is a purchase of asset or purchase of goods, whether it is related with the sale of goods or sale of asset or any other type of transaction. Each and every transaction is recorded in that very first book, and this book is journal book. But suppose the number of transactions of a business unit is very large, means type of Reliance type of company is there or Tata Birla type of business is there, then only one book is not sufficient to record even daily's transaction. ठीक है, डेली के उनके इतने ट्रांजेक्शन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के साथ कि हम एक बुक में सारी रिकॉर्ड करेंगे तो मे बी उन कंपनीज के तो ट्रांजेक्शन इतने होंगे कि वन डे में ही वो बुक जो है वो फिल हो जाएगी. So in that condition, if you are doing your business at large scale and the number of transactions are very large, then we have to maintain some means then we have to, you can say, divide the journal into various books. तो हम उस journal को various books में divide कर देते हैं, and this division is known as, means this type of books are known as subsidiary books. So according to the nature of the transaction, we have to maintain one book. Suppose cash transaction, for cash transaction we have to maintain cash book. For purchase of means credit purchase of goods, you have to maintain one purchase book. Credit sale of goods, you have to maintain sale book. All types of returns regarding purchase return, means if you are returning some goods to your supplier, then that type of transactions are recorded in purchase return. Otherwise, some customer returns good to your organization, then you have to record in sales return book. Otherwise, the transaction which is not recorded in any subsidiary book, you have to write down in जर्नल प्रॉपर. ठीक है, जो ट्रांजेक्शन किसी भी बुक में नहीं मेंशन हुआ, सपोज आपने एसेट्स परचेज की है और वो भी क्रेडिट पे परचेज कर ली, कौन सी बुक में राइट करोगे? कोई भी बुक नहीं है, क्योंकि परचेज बुक में तो आप सिर्फ गुड्स के क्रेडिट पे अगर आप गुड्स परचेज करते हो सिर्फ वही राइट कर सकते हो. अगर आपने क्रेडिट पे कोई मशीनरी परचेज किया, प्लांट परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज की है, तो उसके लिए तो कोई भी बुक नहीं है. So in that condition, you have to write down that transaction in journal proper. So the transaction which is not recorded in any subsidiary book, you have to write down in journal proper. So this type of division of books is known as subsidiary books. Means each and every book is known as subsidiary book, or you can say book of original entry or book of primary entry. So from this chapter, means 10th onward, you have to learn how to maintain these types of subsidiary books. आप इससे आगे के चैप्टर्स में यही सीखोगे कि आपने इन सब्सिडरी बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, कहाँ ट्रांजेक्शन्स राइट करने हैं, कैसे राइट करने हैं. आपने जर्नल कर ली है, आपने लेज़र कर लिया है, लेकिन बाय चांस आप जर्नल की जगह पर सब्सिडरी बना रहे हो, जर्नल नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं बिजनेस के, तो आपका जो है ट्रांजेक्शन सीधे सब्सिडरी बुक्स में आएंगे, फिर जर्नल में जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी. क्लियर? जर्नल बुक आपको मेंटेन ही नहीं करनी है, क्योंकि जर्नल के प्लेस पर ही सब्सिडरी बुक्स आ जाती हैं. सो उस कंडीशन में आपको सीधे ही उस ट्रांजेक्शन को, सपोज क्रेडिट पे परचेज किए हैं गुड्स को, तो आपको जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. आप उस क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को सीधा ही कहाँ राइट कर दोगे? परचेज बुक में. क्लियर? सो इन चैप्टर्स में आप गो थ्रू होंगे कि कैसे हम लोगों ने इन सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फिर आगे उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे उन सब्सिडरी बुक से, क्योंकि आपको जर्नल से लेज़र मेंटेन करना आ गया है,
जर्नल अगर बनाई हुई है आपने तो लेज़र कैसे मेंटेन होगी वो आप कर चुके हो लेज़र चैप्टर में। अगर आपने सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई हैं देन द फर्दर प्रोसेस मीन्स लेज़र हाउ कैन यू मेंटेन, ट्रायल बैलेंस हाउ कैन यू प्रिपेयर। सो ये सारी चीज़ें आपकी सब्सिडरी बुक्स पे डिपेंडेंट होंगी। So very first book we are doing in this chapter, very first subsidiary book we are doing in this chapter, that is cash book. So cash book is a type of primary book because each and every transaction, each of every you can say business organization is wants to know their cash balance at any point of time, है ना। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश अवेलेबल है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वेरीफाई करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी बुक्स में भी वही कैश शो हो रही है जो उनके पास कैश इन हैंड अवेलेबल है। क्लियर। तो उसके लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है क्योंकि कैश बुक एक ऐसी बुक है जिससे आप किसी भी टाइम पे आप अपने कैश के बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने माइंड में सेट करो कि जो कैश बुक है वो हमेशा आपके डेबिट बैलेंस को शो करेगी बिकॉज कैश इज रिलेटेड विद एसेट एंड according to asset, all assets are always having debit balance. So cash book is also a type of asset, and according to the other assets, these types of asset is always is also having always debit balance. ठीक है। तो कैश बुक को आपने जब भी मेंटेन करना है, अगर आपके पास लास्ट ईयर का कुछ कैश अवेलेबल है देन यू हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस brought down. Suppose on 31st of April 2019 you are having 5,000 as a cash in hand and you are now you have to prepare new sessions cash book. Then on 1st of April 2009 19 because the balance is on 31st of March 2019. Suppose you have to maintain next session's cash book, then your session will start from 1st of April 2019 and ends on 31st of March 2020. So on 1st of April 2019 you are having a balance of 5,000 in cash form in your hand. So whenever you start your cash book for the new session, you have to write down two balance brought down कि ये बैलेंस हमने हमने लास्ट ईयर से ब्रॉट डाउन किया है एंड यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 5,000 because cash books or any other type of assets are always having debit balance. Clear? Now come to the point. Cash book means real accounts figure. So according to the real accounts rule, you have to apply debit what comes in and credit what goes out. Means in debit side you have to record all receipts and in credit side you have to record all payments. ठीक है। आपको कैश बुक मैं पिक भेज दूंगी, मेरे पास ओरिजिनल कैश बुक पड़ी है। ठीक है। उसमें क्या होता है, टू पेजेस आर देयर, टू साइड्स आर देयर, one side this one, another one is this one. Two pages are there and this one is considered one page. This side is known as debit side, another one is so this side is known as debit side, another one is treated as debit side, and another one is treated as credit side. So all the receipts you have to write down in debit side, all the payments which you have made in cash form you have to write down in credit side. ठीक है। सारी रिसिप्ट्स डेबिट में आएंगी, सारी पेमेंट्स आपकी क्रेडिट में आएंगी, लेकिन वो रिसिप्ट्स आपकी कैश में होनी चाहिए, वो पेमेंट्स आपकी कैश में होनी चाहिए, ओनली दैट। क्लियर। तो ये और इससे जुड़े हुए बहुत से आगे फैक्ट्स हैं, कैसे प्रिपेयर करना है कैश बुक एंड ऑल, ये हम अभी इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन पहले हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में कर रहे हैं। सो सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग क्लियर है, कब बनाते हैं ये भी क्लियर है आपको। अब इसके एडवांटेज देखो, हम अगर सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स देंगे ये सब्सिडरी बुक्स। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर। ठीक है। आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है बुक में से एज इट इज़ राइट करना। सो द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक मीन्स इफ यू आर मेंटेनिंग n number of books in the place of one book, then what are the main benefits you obtain? So very first is division of work is there, because n number of books are there, so different books are, you can say, uh,
given to different person or different employee. So each and every person's work is divided, and each and every person is responsible to maintain a specific book. Means अगर आपने परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है तो परचेज रिटर्न के लिए एक अलग एम्प्लॉई होगा, सेल्स बुक के लिए एक अलग एम्प्लॉई को आप दे सकते हो करने के लिए, कैश बुक आप एक अलग मेन अकाउंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए दे सकते हो. सो डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर. एक पर्सन अगर जर्नल प्रिपेयर करता है देन द वर्क ऑफ दैट पर्सन बिकम वेरी बल्क. तो उसका बर्डन हो जाएगा, उसके सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा. बट इन दिस कंडीशन यू कैन डिवाइड द वर्क इनटू एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, जितनी आपकी बुक्स है उतने एम्प्लॉइज में आप उस वर्कलोड को डिवाइड कर सकते हो. तो काम इजीली हो जाता है, टाइम से हो जाएगा, बिना एरर के हो जाएगा, है ना. एंड नेक्स्ट वन यू कैन ऑल्सो राइट स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइजेशन? ये टर्म आपको बहुत बार यूज होगी. So specialization means when a piece of work is given to a particular person, then uh, due to repetition of that work, that person become the expert of that piece of work. अगर हम एक काम एक पर्सन को देते हैं और वो पर्सन डेली उसी काम को ही करता रहता है तो उससे वो उस काम का एक्सपर्ट हो जाता है. ठीक है, तो एक्सपर्ट होने से क्या होगा, कुछ बेनिफिट्स उसको मिलने लग जाते हैं कि एक्सपर्ट हो गया मीन्स वेस्टेज कम से कम करेगा, टाइम की, मटेरियल की, है ना. और नए नए तरीके फाइंड आउट कर लेगा उस काम को करने के. सपोज आपको जो है मैं जो है एक कोई भी एक वर्क जो है आपको डेली मिलता है. सपोज हमने लेक्चर स्टैंड बनवाने हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है. ठीक है, लेक्चर स्टैंड स्कूल के लिए बनवाने हैं और उस 5 लेक्चर स्टैंड्स को बनवाने के लिए हमने क्या किया कि 5 पर्सन है हमारे पास. या तो हम क्या करेंगे, 1 लेक्चर स्टैंड ईच पर्सन को दे देंगे कि आप इसको प्रिपेयर करके लेके आओ. ठीक है, या फिर हम उसको कैसे डिवीजन कर सकते हैं कि एक पर्सन का कटिंग में बहुत मीन्स वुडन जो स्लाइड्स हैं उसको कट करने का उसका बहुत मन है, शौक है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट है उसका, तो उसको सिर्फ वुडन स्लाइड्स को शेप्स में लेक्चर स्टैंड की शेप में कट करने का काम उसको दे दिया. ठीक है, सेकंड को असेंबलिंग का वर्क दे दिया, थर्ड को जो है उसकी फिनिशिंग का वर्क दे दिया, फोर्थ को हमें सपोज उसे प्लाई पेस्ट करने का काम दे दिया और फाइनल टचअप देने का काम फिफ्थ को दे दिया अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. तो उससे क्या होगा कि जब वो फर्स्ट पर्सन वुडन स्लाइड्स को फर्स्ट लेक्चर स्टैंड के लिए कट करेगा तो हो सकता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन दूसरे स्लाइड को दूसरे के लिए कट करेगा तो फिर कम टाइम लेगा, थर्ड में वो और भी कम टाइम लेगा. सो मीन्स एक ऐसा टाइम आएगा जब वो उस काम को करते रहने से, सेम वही काम को करने से एक्सपर्ट हो जाएगा. तो उसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. मीन्स दैट पर्सन बिकम स्पेशलाइज्ड टू दैट पीस ऑफ वर्क. ठीक है, तो उससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा कि वेस्टेज कम से कम करेगा वो टाइम की, मटेरियल की, और वो उस काम को करने के नए नए मेथड्स फाइंड आउट कर लेगा. Clear? Yes. Actually, you are right. Debit or credit means in debit you have to write down all receipts means all plus. आपके कैश में जितना भी प्लस हो रहा है वो आपने डेबिट में लिखना है. कैश जहाँ से भी आपकी जा रही है, माइनस हो रही है, पेमेंट्स हो रही हैं, you have to record in credit side. Okay. So come to the point. Specialization benefits and you can say increase in efficiency. ठीक है, specialization and you can also write increase in efficiency. ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको सब्सिडरी बुक्स होने पे मिलेंगे क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो जाएगा. अब एक पर्सन जो है वो परचेज बुक को बना रहा है, 10 सालों से वो वही काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको ईच एंड एवरी टर्म जो है वो क्लियर होगी, कैसे हैंडल करना है वो भी सब चीज़ें जो है उसको पहले से ही पता होंगी. तो उसको इफेक्टिव वे से कर सकता है, फ्री ऑफ एरर वर्क जो है वो रहेगा उसका. तो इसको स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स बोलते हैं. एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो कम से कम टाइम पीरियड में उन एंट्रीज को जो है रिकॉर्ड कर लेगा सेफली. नेक्स्ट वन इज सेविंग ऑफ टाइम. सो सेविंग ऑफ टाइम तो रहेगा क्योंकि एक ही पर्सन एक काम को बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से कर रहा है. सो he or she will you can say take very less time. So saving in time. Next advantage of subsidiary book you can say availability of information. What do you mean by this? Suppose you are maintaining journal book only. So in journal book you have recorded each and every type of transaction. Suppose we have to find out the total number of purchase in a month. ठीक है, हमने एक मंथ में जितने भी रॉ मटेरियल की परचेजेस की हैं उसकी फिगर फाइंड आउट करनी है.
तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। जर्नल में से पहले आप परचेजेस के ट्रांजेक्शन्स फाइंड आउट करोगे पूरे मंथ के, फिर उनको ऐड करोगे, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द total number of purchase for that particular month. But suppose if you are maintaining purchase book, then you have to only check that month's balance of purchase. So you can easily find out the credit number of purchases, and from cash book you can also find out the cash type of purchases. Clear? So it is means you can say easily availability of information. जो information आपको चाहिए, अब देखो suppose अगर आपने cash find out करने की टाइम पीरियड पे हमारे पास 7000 की कैश अवेलेबल है और हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग कितनी है, तो आप क्या करोगे, अपनी कैश बुक उठाओगे, उसका बैलेंस चेक कर लोगे, इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आपको कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स पहले पिक करने होंगे, उसको एक अलग पेपर पे राइट करोगे, फिर ऐड करोगे, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट। सो ये आपका टाइम जो है वो वेस्ट करेगा। अदरवाइज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स यू कैन इजीली फाइंड आउट that type of information which you required. Next one is you can say facility in checking. Facility of checking means कि आप इजीली कभी भी चेक कर सकते हो किसी भी ट्रांजेक्शन को, ठीक है। अब वही चीज़ कि हमने क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने हैं, देन यू हैव टू चेक ओनली परचेज बुक, ठीक है। आपको और कोई ट्रांजेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इन जर्नल इट्स वेरी टफ टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैलेंस, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। Next one is responsibility. Responsibility means you can easily fix the responsibility of that person who is maintaining a particular type of book, ठीक है। अगर एक ही पर्सन जर्नल मेंटेन कर रहा है तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी रहेंगे, वहाँ पे जो है जो मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, मिस हैंडलिंग है वो भी रहेंगी, ठीक है। एरर्स मिस्टेक्स भी रहेंगी, फ्रॉड भी रहेंगे। अदरवाइज इफ अ specific person is maintaining a specific type of subsidiary book, then only that person is liable to responsible for that particular type of subsidiary book. अब मान लो आपने कैशियर को कैश बुक मेंटेन करने के लिए दिया है, तो कैश बैलेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन मीन्स आंसरेबल टू दैट कैशियर। तो वो कैशियर से ही आप आंसर जो है वो फाइंड आउट करोगे, उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वही आंसरेबल रहेगा कि अगर कैश कम या ज़्यादा रहती है उस कंडीशन में। सो इट्स वेरी इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इफ यू आर मेंटेनिंग एन नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। Clear? So these are the benefits of subsidiary books if you are maintaining. Now come to the main book, that is your cash book. कैश बुक को कैसे मेंटेन करना है, मेन चैप्टर आपका वही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग सब्सिडरी से की है, सब्सिडरी का मीनिंग आ गया, सो सब्सिडरी के बेनिफिट्स एक्सप्लेन हो गए। अदरवाइज द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश बुक ओनली। सो कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, you all know. Cash book record each and every type of transaction which is in cash form. So only cash transactions are recorded, no credit transaction. Keep it in your mind. Only cash transactions are recorded. If that cash book is double column cash book, in double column cash book, then you can maintain bank column and cash column. So both the balances are provided in that cash book, ठीक है। अगर आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस यू हैव टू रिकॉर्ड, ओनली वन बैलेंस, दैट बुक इज प्रोवाइडेड बाय दैट बुक, दैट इज कैश बैलेंस। इफ यू आर मेंटेनिंग डबल कॉलम कैश बुक, सो आपको वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शंस भी मिल जाएंगे, उसके बैलेंसेस भी मिल जाएंगे और बैंक के बैलेंसेस भी मिल जाएंगे। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ बुक कंटेन ओनली वन एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट मीन्स क्या होगा? वन एस्पेक्ट मीन्स सपोज purchases of goods on cash basis. What is the journal entry? Purchase account debit to cash. Clear? So इस journal entry के according क्या होगा? When you are maintaining cash book, then in credit side, because this is a payment, ठीक है, आपने goods को purchase किया है और cash उसके लिए दी है, so ये पेमेंट है आपकी। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश गोज आउट है, देन यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड। तो आपको जब जर्नल नहीं बनानी, सीधा आपको सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो, इट मीन्स यू आर मेंटेनिंग ओनली कैश बुक, देन देयर इज नो जर्नल
in this condition you have to write down the this type of transaction directly in कैश बुक। आप जर्नल नहीं मेंटेन करोगे, सीधा कैश में ही बुक में ही डालना है। सो कैश बुक का आपका सिंपल सा फंडा है कि डेबिट में जो भी प्लस है, कैश में जो आ रहा है कैश में वो डेबिट हो जाएगा, जो कैश जा रही है वो क्रेडिट करनी है। सो क्रेडिट वाली साइड पे आप क्या लिख दोगे, बाय परचेजेस विद द अमाउंट ऑफ दैट परचेज। ठीक है, सपोज 5000 है तो 5000 हो जाएगा। लेकिन ये कैश की जो है एक तरह से लेजर ही है। जैसे हम कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर मान लो हम कैश बुक नहीं बनाए तो कैश अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा लेजर में जाके, क्योंकि उस कंडीशन में आप ये जर्नल एंट्री में ये जर्नल करोगे और लेजर में जाके कैश अकाउंट बनाओगे। और लेजर में जब कैश अकाउंट बनाएंगे तब आप यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट लिख के अमाउंट लिखोगे। या तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंडली, आप जर्नल नहीं बना रहे हो, आप इसकी जगह पे सब्सिडरी बुक बना रहे हो। Subsidiary book means you are maintaining cash book, cash book. So that cash book is divided into two sides. First one is receipt side and second one is payment side. So according to that book, you have to write down in payment side by purchase directly. No need to do this type of journal entry. आपकी फिर सीधा यहाँ ही ट्रांजेक्शन आ जाएगी। बाय परचेज करके आप 5000 यहाँ अमाउंट के कॉलम में राइट कर दोगे। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है सपोज। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको ये सेपरेट अकाउंट लेजर में ओपन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू ओपन any account, any cash account in ledger book. So this book will perform the duty of journal as well as ledger. ये आपकी लेजर भी हो जाएगी, ये आपके जर्नल का भी काम करेगी। क्यों किया? क्योंकि आपने अगर ये मेंटेन किया, सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो, इट मीन्स जर्नल तो है ही नहीं, जर्नल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप सीधा यहीं पे ट्रांजेक्शन्स डालोगे। और क्योंकि अगर आपने ये चीज़ मेंटेन कर ली तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो डबलिंग ही आई। इसमें भी हमने यही काम करना है, इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं। यहाँ से भी हमें एग्जैक्ट कैश का बैलेंस मिल जाएगा, यहाँ से भी एग्जैक्ट कैश का बैलेंस मिल जाएगा। सो यू कैन से दैट कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। ठीक है, ये आपके जर्नल का काम भी करेगी और आपके लेजर का काम भी करेगी। अगर आपने कैश बुक मेंटेन किया देन देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ कैश अकाउंट। क्लियर? एंड बट दिस बुक कंटेन ओनली वन एस्पेक्ट। ठीक है, आप कैश अकाउंट बना रहे हो या कैश बुक बना रहे हो तो सिर्फ इसमें परचेजेस ही जाएंगी। बट इन दिस कंडीशन यू हैव टू मेंटेन वन सेपरेट परचेज अकाउंट इन लेजर। आपको परचेज अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा लेजर में। ठीक है, और वो परचेज में आप टू कैश लिखोगे। दैट इज योर सेकंड एस्पेक्ट विच यू हैव टू रिकॉर्ड इन परचेज बुक। दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट कैश बुक मेंटेन ओनली वन एस्पेक्ट। ये सिर्फ कैश के ही एस्पेक्ट्स को राइट करेगी, जो कैश के अलावा सेकंड एस्पेक्ट है। फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन वन सेपरेट अकाउंट। परचेज का अकाउंट आपको अलग से लेजर में बनाना पड़ेगा। क्लियर? इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी? Okay, then come to the point. Next topic is types of cash book. So generally three types of cash book is there. First one you can say single column cash book, second one is double column cash book, and third one is you can say petty cash book. In your syllabus you have to maintain single column, you have to maintain double column, but in double column you have to maintain only बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम्स कैश बुक। ठीक है, आपको डबल कॉलम में सिर्फ वही कैश बुक बनानी है जिसमें बैंक और कैश का कॉलम होगा। ठीक है, सो types of cash book. First one single column cash book, only one column is there and this will represent your cash balance only. And in double column two columns are there, for one column for
बैंक, अनदर वन कॉलम फॉर कैश। ठीक है, इन पेटी कैश बुक एक सेपरेट फॉर्म है कैश बुक का। सो मीन्स miscellaneous type of expenditure you have to write down in this type of cash book। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जब आएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। So in single column cash book, what is the format of cash book? In this form, first for date you have to maintain, second column for particular, then you have to write down voucher number, again LF, laser folio number, then amount. This one is your debit side, and the same column you have to maintain in credit side। देखो अब इसमें कैसे लिखते हैं। डेट मीन्स डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन यू हैव टू राइट डाउन, पर्टिकुलर मीन्स द सेकेंड एस्पेक्ट, जैसे अभी आपने एंट्री की थी ना परचेज टू कैश, देन बाय परचेज यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड। इन द सेम फॉर्म दिस इज द पर्टिकुलर कॉलम फॉर डेबिट साइड। सो सपोज कैश रिसीव्ड हुई है आपको, ठीक है, सेल से, सो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सो टू सेल यू हैव टू राइट डाउन हियर, मींस इन डेबिट particulars column you have to write down the name of the other account। Then voucher number, voucher number means the evidence of that purchase or sale। The voucher number means the evidence of your cash receipt as well as your cash payment। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा, दैट इज नोन एज वाउचर। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वाउचर मेंटेन करती है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो स्कूल का है, स्कूल, मैं आपको पहले भी बहुत बार ये एग्जांपल दे चुकी हूँ जब भी हमने वाउचर डिस्कस किया है, इससे सिंपल एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। सपोज स्कूल में ऑफिस डिपार्टमेंट में टी आती है और बाहर एक टी सेलर है, ठीक है, एक टी शॉप है, और वहाँ से आपकी जो टी है कॉन्टिन्यूसली या गैप पे जैसे भी है मार्केट से ऑफिस में स्कूल में आती है, तो वो क्या करता है, जो टी सेलर है वो अपनी एक नोटबुक में रफ राइट कर लेगा कि आज इतने कप चाय गई है, आज इतने कप चाय गई एंड ऑल दैट। आफ्टर 1 मंथ या जो भी टाइम पीरियड आपने फिक्स किया हुआ है, वो उसी स्लिप को अपने बिल के साथ, जो भी उसने रफ पेपर पे बिल बनाया है, आपके स्कूल के अकाउंटेंट या प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब उसका प्रूफ आपने रखना है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, उस रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस को अपने बुक्स में डालना है। देन यू हैव टू मेंटेन वन वाउचर। वो वाउचर आपने स्कूल से, जो प्रिंटेड वाउचर हर एक स्कूल अपने पास रखता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो उसमें वो डेबिट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस डाल देंगे और क्रेडिट में टू कैश डाल देंगे। उस पर्सन को जितनी पेमेंट की है उससे उसके थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर उस पे साइड पे एक कॉलम होता है वहाँ ले लेंगे और उस बिल को अथोराइज्ड करवा लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे, किससे, हायर अथॉरिटी से, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट कमेटी से। तो वो उस पेमेंट का प्रूफ बन जाता है, मीन्स द सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है उसको हम वाउचर बोलते हैं। सो ईच एंड एवरी वाउचर हैज वन सीरियल नंबर, यू हैव टू राइट डाउन दैट serial number of a voucher here। Next one is laser folio। Laser folio means the page number of laser book where that entry will be posted। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू सेल्स पोज राइट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आप सेल्स अकाउंट बनाओगे लेजर में, तो लेजर में आपने जिस पेज नंबर पे सेल अकाउंट बनाया है, यू हैव टू मेंशन दैट पेज नंबर हियर। Next, amount, so cash amount you have to write down here, the same means column, date, particular, voucher number, LF and amount you have to maintain on credit side also। In the same double column cash book you have to maintain two columns for amount, one for cash column, another one amount column for bank। ठीक है, उसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है, इसमें अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होगा और आपको डबल कॉलम कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एज इट इज मेंटेन करना है। अमाउंट के टू कॉलम हो जाएंगे, द अमाउंट विच इज रिलेटेड विद कैश यू हैव टू राइट डाउन इन कैश कॉलम, द अमाउंट विच इज रिलेटेड विद द बैंक यू हैव टू राइट डाउन इन बैंक कॉलम। ठीक है, डेबिट साइड में भी आपके अमाउंट के टू कॉलम्स होंगे, इन द सेम फॉर्म क्रेडिट साइड यू हैव टू मेंटेन टू कॉलम्स फॉर अमाउंट। क्लियर? इन फॉर्मेट एनी प्रॉब्लम?
Okay, come to the next. Whenever you are maintaining cash book, you have to keep in your mind some points. That first one is cash book always having debit balance. ठीक है, इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास जितना कैश अवेलेबल होगा, जितना कैश इन हैंड होगा, आप उतने ही पेमेंट्स कर पाओगे, उतने ही एक्सपेंसेस कर पाओगे। सो कैश का जो बैलेंस है वो जीरो हो सकता है, लेकिन कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। देखो रजी, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं ना कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इट मीन्स उसकी हमेशा डेबिट साइड जो है वो एक्सेस में रहेगी। उसका जो टोटल है डेबिट साइड का वो हमेशा एक्सेस होगा। कह रहे हैं ना कैश बुक ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस, इट मीन्स द डेबिट साइड्स टोटल ऑफ कैश बुक is always more than as compared to credit side। ठीक है, यानी कि टोटल ऑफ डेबिट साइड हमेशा एक्सेस में रहेगा एज कंपेयर टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि आपके पास जितनी कैश होगी आप उतना ही खर्च कर पाओगे, उससे ज़्यादा का खर्च नहीं हो पाएगा। और जब भी आपने कैश बुक मेंटेन कर ली, देन नो नीड टू मेंटेन कैश अकाउंट। आपको लेजर में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डबलिंग हो जाएगी, सेम ही वर्क है, जो आप कैश बुक से कर रहे हो वही उसमें आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट मेन फैक्ट यू हैव टू फाइंड कीप इन योर माइंड, दैट इज चेक्स। अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, चेक्स पेड और चेक इशूड, चेक रिसीव्ड, दीज आर नॉट रिकॉर्ड। ये आपने रिकॉर्ड नहीं करना। क्लियर? सो इट्स ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। सॉरी, डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जितना इन हैंड कैश है आप उतना ही उसको यूज करते हो। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेरी? No? Okay. Then come to the sums or numerical. Very first numerical is there. You have to prepare one. Yes. Yes, Ashley. Yes, your voice is not clear, Ashley. Yes, Ashley. Please, please, जी type. Please type your problem. Chat box में write करो, आपकी voice clear नहीं आ रही है. It's not understandable for me. Can you please write? I'm waiting, Ashley. Hurry up. Ma'am, if debit and credit amount is not equal. Whose debit or credit amount? Cash books. Okay. Then we have to balance ना. देखो इसमें मैंने अभी बताया ना आपको, कैश बुक का डेबिट बैलेंस आता है हमेशा। डेबिट बैलेंस का मीन्स क्या है? इन एवरी टाइम
या तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम ही आएगा, ठीक है, मींस नो कैश इन हैंड, नो कैश बैलेंस इज देयर, जीरो कैश बैलेंस इज देयर, जितना आपको रिसीव हुआ उतनी आपने पे कर दी कैश, क्लियर। अदरवाइज यू कैन ऑब्टेन द बैलेंस ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, आपके डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा क्रेडिट साइड के टोटल से, ठीक है। तो उस कंडीशन का मीन्स क्या है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा उस अकाउंट को। 1 मिनट। कैश बुक में आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगी, या तो क्या होगा, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो उसका मीन्स क्या हो गया, नो कैश इन हैंड, नाउ नो कैश बैलेंस इज देयर। अदरवाइज क्या होगा, सेकंड कंडीशन हो सकती है, टोटल ऑफ डेबिट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। Clear, date particular amount and date particular amount. Otherwise क्या होगा, the total of this side is more than as compared to this side, means your receipts are more as compared to your payment, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। सपोज इसका टोटल जो है आपका 10,000 आ रहा है, इट मीन्स आपको लोगों से 10,000 का अमाउंट रिसीव हुआ एंड यू हैव पेड ओनली 2,000, यहाँ पेमेंट जो है वो 2,000 टोटल शो कर रही है। देन यू हैव टू बैलेंस दैट अकाउंट सेम एज मीन्स यू आर मेंटेनिंग, यू आर बैलेंसिंग लेज़र अकाउंट्स, जैसे आप लेज़र अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, यू हैव टू राइट ऑन बाय बैलेंस CD, and the difference between both the sides means 10,000 minus 2,000 is equal to 8,000, so you have to write down 8,000 here so that the total of both the sides will be equal. So this 8,000 means 8,000 is in your hand in cash form, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 8,000 रुपीज़ कैश फॉर्म में अवेलेबल है, ये आपका कैश बैलेंस शो करेगा। एंड दिस इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बिकॉज डेबिट साइड्स टोटल इज़ मोर देन, सो 8,000 इज ट्रीटेड एज the debit balance of cash book. Clear now? So 45 plus minute हो गया टाइम, so you have to do you have to try 1 to 5 questions. Your microphone is off. Okay, I am explaining again. Suppose we are maintaining cash book, so date, particular amount, 3 suppose main columns are in debit side and the same columns are in credit side. Suppose the total of the debit side is 10,000 and this column represent your receipts, so the total of receipt means is 10,000 rupees, and suppose the payment side is, या तो क्या होगा, पेमेंट साइड विल बी 10,000, जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप पेमेंट करोगे ना, तो या तो इसका भी टोटल 10,000 आएगा, देन इन दैट कंडीशन नो कैश इन हैंड। If total of debit side or total of credit side both are equal, then it means no cash in hand is there. The amount which we recovered, which we received from the persons, the same amount or the full amount we have paid to the other party. But suppose the receipt side is more than as compared to payment side, suppose payment side's total is 2,000, in that condition the difference means 10,000 minus 2,000 is equal to 8,000, so you have to write down here same as we balance the लेज़र अकाउंट्स इन लेज़र चैप्टर, ठीक है। सो लेज़र अकाउंट्स को जैसे हम मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, द सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू टोटल बोथ द साइड्स, total of debit side is 10,000, total of credit side is 2,000, so your difference you have to kept in shorter side, means the difference is 8,000, you have to write down in credit side, so this 8,000 represent your cash in hand, ये आपका 8,000 जो है वो कैश इन हैंड को शो करेगा, मीन्स
the debit balance of cash book is 8,000. Debit balance of cash book means कि the total of debit side is more than, so that we have to write down the debit balance. So debit balance of cash book is 8,000, means you are having 8,000 in cash form on that particular date. Clear? Okay, come to the point. Next is मैं आपको थोड़े से ट्रांजैक्शंस करवा देती हूँ, इतना टाइम तो नहीं है सारे ट्रांजैक्शंस होने का, जो भी है आप देख लो 5-10 मिनट्स में. Suppose we are doing first question. So two sides are there. First one is debit side, another one is credit side. Plus side and minus side, you can also write. Plus side, minus side means all receipts you have to write down here, all payments you have to write down in this side. So very first is cash in hand, means on 1st of April you are having balance of cash. So you have to start your question by writing two balance brought down, because this is the balance of last year. ये last year का balance आपका आगे आया है. So you have to write down in debit side, because cash book is always having debit balance. So you have to write down two balance brought down with the amount 25,000. Next one is cash sale. Cash sale करोगे तो क्या होगा? You will receive cash, so you have to write down in debit side. Two sales, two, and buy you have to write down two for debit side, and buy for credit side you have to write down similarly as we are maintaining any ledger account. Clear? Next one is deposited cash in bank. अब आप कैश डिपॉजिट करवाओगे बैंक में, सो इट विल रिड्यूस योर कैश बैलेंस, सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट. नेक्स्ट वन इज issued check to a creditor rupees 49,900 after deducting cash discount of 3,100. इसका मीन्स क्या है कि आपने एक चेक इशू किया है, ठीक है, और वो चेक जो इशू किया है उसमें आपने 49,900 का किया है और 3,100 का जो है वो आपने कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है, क्योंकि चेक हम इशू कर रहे हैं. देखो चेक इशू करने से हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो हमारे बैंक बैलेंस को रिड्यूस करेगा. तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तो इसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना. अदरवाइज़ वो चेक भी जब बैंक के पास जाएगा, वो डिपॉजिट करवाएगा वो पर्सन, हमने यहाँ इशू किया है अभी सिर्फ, जब वो पर्सन डिपॉजिट करवाएगा वहाँ बैंक में जाके, तब हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा. सो दिस विल नॉट शोन इन योर कैश बुक. नेक्स्ट वन इज वेजेस पेड इन कैश, ठीक है, कैश में आपने पे किया है, सो पेमेंट इज देयर, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस साइड. इन द सेम फॉर्म कैश सेल अगेन, सो कैश सेल यू हैव टू राइट डाउन इन दिस साइड. डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक, ये भी आपके कैश बैलेंस को रिड्यूस करेगा, इस साइड पे राइट करना है. इन द सेम फॉर्म ऑन 9th पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड, ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टर को बिल नंबर 265 के लिए पेमेंट की है कैश की, ठीक है. सो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस योर कैश बैलेंस, सो यू हैव टू राइट डाउन बाय कैरेज आउटवर्ड, ठीक है. कैरेज आउटवर्ड मीन्स आपने जो कैरेज मीन्स जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए भाड़े के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड. नेक्स्ट वन इज पेड कैश फॉर रिपेयर, दिस इज ऑल्सो अ पेमेंट, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस साइड. सो ये आपने इसी टाइप से राइट करना है. क्लियर? सो ट्राई कर लेना इन क्वेश्चंस को 1 to 5, जो भी रहेगा प्रॉब्लम्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके डिस्काउंट को आपने इसमें मेंशन नहीं करना, ध्यान रखना, डिस्काउंट आपका यहाँ नहीं आएगा. फॉर डिस्काउंट वी आर मेंटेनिंग वन सेपरेट जर्नल एंट्री इन जर्नल प्रॉपर बुक. ओके, so you have to try questions of cash book. If there is any problem, then you can message me or call me, otherwise we will discuss in the next lecture. Okay students, that's all for today.